Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to the week number 2 and lecture number 1. Before we start our new topic, let's revise what we have studied in the last lecture. Imagine we have to walk from one place to another. For this, our brain thinks about the movement, instructs the respective muscles, and helps us perform the task. This is what we know as a voluntary activity. Now tell me, do we need to remind ourselves post some time that we have to inhale and exhale air? Or do we remind our heart to beat and pump blood? No, right? That just happens without our notice. Yeah. These are the examples of involuntary activities. Involuntary activities are mostly the crucial ones that occur within us and which help us sustain life. Take this activity of breathing, for example. Isn't it extremely important? Yes. If we don't breathe, then how will all the cells in our body obtain the necessary oxygen for survival? And how will the toxic carbon dioxide be released out? Also, how will the cells derive energy if the food molecules are not broken down? So overall, respiration is extremely important. Tell me one thing, are breathing and respiration the same thing? I'm sure your answer will be yes, but that's not true. Let's understand what exactly the difference between the two is. To begin with, I want you to answer one simple question. How do we get the energy to perform all activities? Most of us will answer from the food we eat, right? Well, that's partially correct. The food we eat is the source of energy, which means that the energy is stored or locked inside the food. In order to unlock or derive the energy from it, the food needs to be broken down, and this requires oxygen. So we can say that the process in which the food is broken down in the cells with the help of oxygen to release energy is called respiration. And how is it different from breathing then? Well, breathing does not involve breakdown of food molecules inside the cells. In fact, breathing is purely the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide to be precise. So the activity of inhalation and exhalation is breathing, whereas deriving energy from food molecules with the help of oxygen is respiration. Does this mean that breathing is a part of respiration? Absolutely. Breathing is a smaller process which is considered as a part of the larger process of respiration. Let's once again go through the definition of respiration. It's the process in which the food is broken down in the cells with the help of oxygen to release energy. And how do the cells get oxygen? It's due to breathing, right? That's why we say that breathing is a part of respiration. Now, the next important thing we need to understand is the types of respiration. And students, when it comes to types of respiration, we studied about aerobic and anaerobic respiration. We know that aerobic respiration, we need oxygen, and in anaerobic respiration, we do not need oxygen. Second thing is aerobic respiration, we release a lot amount of energy, and in anaerobic respiration, बहुत थोड़ी amount of energy release होती है. Now coming to the today's topic, which is gaseous exchange in animals. Okay, जब मैं term use कर रहा हूँ animals की, so there are two kind of organisms, multicellular organisms and unicellular organisms. When I say the term unicellular, uni means single celled, just like bacteria. So bacteria single cell से बना है, तो उनकी जो पूरी body है, it is just single cell. So they have more surface area, or they do not require any special structures for gaseous exchange. वो अपनी skin से ही या कह लो अपनी membrane से वो सारा गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, जो उनकी बॉडी, जो उनके सेल में, और यू कैन से उनकी बॉडी में जो उनके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, दे एक्सपेल दैट आउट थ्रू दैट मेम्ब्रेन, और जो उन्हें यूजफुल मटेरियल्स चाहिए बाहर से, वो बाहर से उसे इनटेक कर लेते हैं. वंस अगेन, जो उनकी मेम्ब्रेन है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सेकंड थिंग इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर मीन्स कि वो एक से ज्यादा सेल से बने हैं, दे हैव डिफरेंट सिस्टम्स, जस्ट लाइक ह्यूमंस. ह्यूमंस में
we have lungs, fishes may have gills and etc. जब हम बात करें multicellular organism की, it means it have number of systems like circulatory system, it will have digestive system, and so on. और उन systems में different organs आ जाएंगे, like kidneys हैं जिसमें excretory system में आती हैं, kidneys आ जाएंगी, lungs आ जाएंगे, and हार्ट आ जाएगा. ऑल दीज सिस्टम्स, अब अगर मैं आपको बताऊं, इन सब सिस्टम्स को ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए. एंड एट द सेम टाइम जब ये वर्क कर रहे हैं, जब ये सारे सिस्टम्स, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपकी किडनीज वर्कआउट कर रही हैं, आपका लिवर फंक्शन कर रहा है, तो इन सब को काम करने के दौरान वेस्ट मटेरियल निकलता है, और वो एक ऐसा वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड. दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली टॉक्सिक. Here I can write it that CO2 is toxic and it is very harmful. So कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, हर वो वेस्ट मटेरियल, हर वो चीज बॉडी में जो टॉक्सिक है या जो बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, सो इट हैज टू लीव द बॉडी. सो ह्यूमंस के अंदर वी हैव लंग्स. व्हेन इट कम्स टू गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए वी नीड लंग्स. फिशेज में दे हैव गिल्स. थ्रू गिल्स उनका गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस चलता है. And again, when I say gases exchange, and there comes the breathing mechanism. Breathing mechanism में this is very simple कि जो आप air intake कर रहे हो, it is inspiration. हमारे पास दो processes हैं, एक inspiration, एक expiration. Inspiration में inhalation, like जब आप सांस ले रहे हैं, which is the taking in of air is inspiration, and the giving out of air is expiration. This is very simple and very common. The next thing comes is the gases exchange system in man. वो कौन-कौन से factors हैं, वो कौन-कौन सी चीजें हैं which are involved in the gases exchange. Starting from the first one, अगर हम बिल्कुल start करें तो nasal cavity, noses, जो हमारी two nostrils हैं, the two outer nostrils. यहाँ से हम सांस को inhale कर रहे हैं, inhalation कर रहे हैं. We are taking in the air through this nasal cavity. अच्छा, यहाँ से in nasal cavity से, before I go further, मैं आपको बता दूं, nasal cavity में हमारे पास in the nasal passages we have two parts, external layers and internal layers. External layers वो हैं जो आपके nose के outer part हैं, जो दो holes आपको दिखते हैं, these are external layers. और ये दो holes आगे जाके merge करते हैं into internal layers. So यहाँ से जो आप air intake कर रहे हो, वो eventually internal layers तक जा रही है. और internal layers से आगे किधर जाती है? Pharynx. Pharynx is actually an open space. Usually जब गला खराब होता है, तो टेक्निकली वो जो डॉक्टर आपको मुंह खोल के चेक कर रहे होते हैं, वो फेरेंक्स वाले एरियाज को चेक कर रहे होते हैं कि कितनी स्वेलिंग है, बिकॉज इट इज एन एरिया के जहां पर बैक्टीरियाज या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को इजीली एक स्पेस और फूड प्रोवाइड हो जाती है, तो वो यहाँ पे इजीली ग्रो कर जाते हैं. सो जो एयर हमने इनहेल की थ्रू नेजल कैविटी, इट गोज टू द फेरेंक्स. फेरेंक्स के बाद आएगी वो लैरिंक्स में. सो लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स यूजुअली हम इसे कहते हैं वॉइस बॉक्स. लैरिंक्स के अंदर ही ग्लॉटिस होता है. आपने चैप्टर नंबर 8 में इसको पढ़ा था जब हम डाइजेशन, फूड डाइजेशन वाले चैप्टर में थे. सो वी स्टडीड अबाउट दैट ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस. सो लैरिंक्स में से वो एयर गुजरती है थ्रू ग्लॉटिस एंड देन इट गोज टू ट्रैकिया. ओके, नाउ कम हियर टू द ट्रैकिया. ये जो आपको पाइपलाइन दिख रही है, दिस इज ट्रैकिया. यूजुअली कहा जाता है इट इज अ विंड पाइप. वो वाला पाइप है जब आप एयर इनहेल करते हैं तो आपकी वो एयर यहाँ से, वेदर आप मुंह से इनहेल कर रहे हो या नॉस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हो, वो एयर इन ट्रैकिया से मूव करके आपके लंग्स के अंदर जाती है. वंस अगेन रिपीट करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं थ्रू द नेजल कैविटी, इट गोज टू द फेरेंक्स. फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हर ह्यूमन बीइंग में, हमारे यहाँ यूजुअली मैमल्स में we have two lungs or a pair of lungs. दो lungs होते हैं हमारे पास, एक right side पे, left side पे. There are two lungs in the thorax. Thorax बाद में बताता हूँ कि क्या होता है. When it comes to right and left lung, तो right lung की 3 lobes हैं और left lung की 2 lobes. Right, अच्छा, जब lobe की बात हो रही है तो lobe means 3 parts हैं और left lung के 2 parts हैं. You can say कि भाई right lung के 3 छोटे-छोटे parts हैं और left lung के 2 बड़े parts हैं. अच्छा, when we go deep into the lungs, ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड कर रहा है इनटू ब्रोंकस. आपको ये ब्रोंकस दिख रहा है, ब्रोंकस एक्चुअली सिंगुलर है, तो यहाँ पे इस जगह देखिएगा
कि ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, ये 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं और ईच लंग में चले जाते हैं। फर्दर मोर जब ये ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स, इन ब्रोंक्यूल्स के आगे आपको एक ऐसे बिल्कुल स्मॉल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है व्हिच इज नोन एज एल्वियोलाई। अब नेजल पैसेज से होते 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 इवेंचुअली वो एयर कहाँ आ रही है, एल्वियोलाई में, और हमारी जितनी ब्लड कैपिलरीज हैं बॉडी की वो एल्वियोलाई तक जा रही होती हैं। सो जितना गैसेस एक्सचेंज है वो होता है एल्वियोलाई में। वंस अगेन ऑल द गैसेस एक्सचेंज, जितना भी गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हम बाहर से ब्लड के अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर लेके जाते हैं, जो हमें एक्सहेल कर देते हैं, वो सारा प्रोसेस एल्वियोलाई के अंदर हो रहा होता है। इट इज अ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, और इसको, इस एल्वियोलाई को, जो आपको छोटा सा बॉल नजर आ रहा है, इसको, इस क्लस्टर को वी कैन से इसको बहुत ज्यादा रैपिंग उसको की होती है कैपिलरीज के साथ, ब्लड कैपिलरीज से। ओके, if you read this, there are 2 lungs in thorax. Right lungs के 3 lobes हैं, left lung has 2 lobes, and the air passage consists of nasal passages, fine pharynx, फिर larynx, फिर glottis से होके, अच्छा glottis के बाद ऊपर एक epiglottis होता है, epiglottis। एपिग्लॉटिस यूजुअली आपको पता होगा इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, और ये वो फ्लैप है, आपने कभी नोटिस किया होगा व्हेन वी स्वेलो समथिंग, जब हम स्वेलो करते हैं तो वो हमारा सांस, हम उस टाइम पे सांस नहीं ले सकते। सो दिस इज द थिंग, ये एपिग्लॉटिस वो फ्लैप है, इट इज अ स्मॉल कार्टिलेज टाइप वेरी टाइनी फ्लैप, जो कि किसी फूड पार्टिकल को या पानी को आपके एयर पैसेज में नहीं जाने देता, और अगर ये चला जाता है तो वी ऑल नो कि कितनी सीवियर कफिंग शुरू हो जाती है जस्ट के उसको बाहर निकाला जाए। Larynx के बाद ग्लोटिस, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, वी ऑल नो दिस थिंग। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ब्रीदिंग थ्रू नोज? नाक से सांस लेने का क्या फायदा है? अच्छा, यूजुअली जब हम नोज से सांस लेते हैं, ऑल नो कि नोज के अंदर 2-3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। पहली चीज, देयर आर हेयर्स इन द नोज। वो हेयर्स क्या करते हैं, वो बाहर से हम जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। Hairs in the nostrils trap dust and foreign particles like bacteria because of mucus. अच्छा भाई, 2 चीजें हैं, एक तो hairs हैं और उसके बाद mucus membrane है। नाक, नोज की इंटरनल साइड पे there is a mucus membrane, और वो mucus प्रोड्यूस करती है, और mucus क्या चीज है? It is a slimy sticky substance। तो वो स्टिकी सब्सटेंस क्या करता है, वो उन जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं उन पे ट्रैप हो जाते हैं। एक तो हेयर्स उन डस्ट पार्टिकल्स को आगे नहीं जाने देते, और म्यूकस उन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। सो और ये क्यों होता है कि हमारे लंग्स तक कोई बुरी चीज या हार्मफुल चीज ना चली जाए। सेकंड पॉइंट, नोटिस किया होगा सर्दियों में जब हम सांस लेते हैं तो बाहर से जब हम सांस ले रहे होंगे तो हमें ठंडा महसूस हो रहा होता है, बट वो जैसे ही हम इनहेल करते हैं वो आगे पूरे पैसेज में जाते जाते वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाता है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चीज हम बाहर से इनटेक कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करता हो, अदरवाइज वो चीज हार्मफुल हो जाएगी। दिस इज द रीजन कि डॉक्टर्स हमें कहते हैं भी खाना नॉर्मल टेम्परेचर में खाएं, ज्यादा गर्म भी नहीं हो ज्यादा ठंडा ना हो, ठंडे पानी से भी परहेज को कहा जाता है, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज आवर internal layers of the stomach and so on. Third point is there are receptor cells. Once again, we know what are receptor cells. एक चीज के हमारे नॉस्ट्रल्स में हेयर्स हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, हार्मफुल मटेरियल्स को आगे नहीं जाने देते, एयर वार्म हो जाती है, और तीसरी चीज रिसेप्टर सेल्स हैं, वही जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, देयर आर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स जो कि हार्मफुल केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज कि कभी आप एसिड की बोतल को ओपन करें, तेजाब की बोतल को, और उससे जब आप इनहेल करते हो, यू कैन नॉट इनहेल। आप पहले इनहेल में आप एकदम से ऐसा फील करते हो जैसे आपको जबरदस्ती रोक लिया गया है सांस लेने से, आपका सांस रुक जाता है एकदम से, बिकॉज ब्रेन परसीव करता है इस चीज को, इट इज अ हार्मफुल वेपर। वो जो वेपर्स उसमें से निकल रहे हैं वो इतने नुकसानदेह हैं कि वो आपके उस एयर पैसेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो यू मस्ट नॉट ट्राई दिस थिंग। वार्म हो जाती है, और तीसरा देयर आर स्पेशल रिसेप्टर्स जो कि हार्मफुल एयर को अंदर नहीं आने देते। वंस अगेन हम आते हैं यहाँ पर अब ट्रैकिया के अंदर। अब ये जो ट्रैकिया आपको दिख रहा है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। ये लॉन्ग ट्यूब बिल्कुल एसोफेगस के सामने होती है। हम जो फूड ईट कर रहे हैं वो थ्रू एसोफेगस हमारे स्टमक में जा रहा है, और एसोफेगस के बिल्कुल सामने ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया में आपको ये इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज नजर आ रहा है। ये जो इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ये सी शेप कार्टिलेज होते हैं, ये इसे पकड़ के रखते हैं। ये आपको देखो थॉरोली एंड तक नजर आ रहे हैं।
ये इस पाइपलाइन को, बिकॉज इस पाइपलाइन में कोई मोटी चीज तो जानी नहीं है, जस्ट एयर जा रही है, तो इस पाइप को ओपन रखने के लिए ये स्मॉल टाइनी बोन्स, फ्रेजाइल बोन्स हैं जो इसको ओपन रखती हैं इस पाइपलाइन को, ताकि एयर पैसेज इजीली हवा इसके अंदर आ सके और इससे बाहर जा सके। देयर आर सम डिजीजेस जिसमें ये रिब्स, सॉरी ये जो कार्टिलेज है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती और वो एयर पैसेज पतला हो जाता है और विजिंग की आवाज आने लगती है, वो लोग सांस लेते हैं तो खांसी उनको ज्यादा होती है और सीटियों की आवाज आती है उनकी सांस से। ओके, नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैकिया के अंदर, इस ट्रैकिया के अंदर का स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जब हम सांस ले रहे हैं तो ट्रैकिया के अंदर देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, और वो कौन से सेल हैं, हियर इट इज द इमेज, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रैकिया की इंटरनल लाइनिंग है, इसको कट करके इंटरनल लाइनिंग और देयर आर ग्लैंड, वही म्यूकस सिक्रेशन, उस वही तो नहीं, उस तरह की म्यूकस सिक्रेशन जो हमारी नोज से आ रही है, जो कि ट्रैप करती है डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स को और पार्टिकल्स को। सेम थिंग हैपेंस हियर, ये सीलिया क्या करते हैं, इससे पहले ये म्यूकस जो निकल रहा है ये क्या करता है, ये हार्मफुल केमिकल्स को, हार्मफुल बैक्टीरियाज को, फॉरेन पार्टिकल्स को, डस्ट को ये ट्रैप करेगा, ट्रैप करके यहाँ पे ट्रैप कर लिया, अब वो सीलिया के अंदर है। सीलिया हमेशा मूव करते हैं अपवर्ड, ऊपर कह लो कि हमारे मुंह की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और वो जितने हार्मफुल पार्टिकल्स हैं एक्चुअली फेरिंक्स में आ जाते हैं। Here it is written, which trap the dust particles and bacteria. The cilia help to sweep these particles up the bronchi and the trachea into the pharynx, and from here they are swallowed into the esophagus. कभी फ्लू अगर हुआ हो हमें, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमें बहुत रेशा हो गया है, और उस वक्त वो सारा रेशा, that green colored thing, वो eventually move करती है ऊपर की तरफ. We all know that. Okay, next thing जो आपको अब बताने की जरूरत है कि वी हैव टू लंग्स, राइट एंड लेफ्ट, और ये जो लंग्स हैं इसको कवर किया हुआ है चेस्ट कैविटी ने, विच इज रिब्स, ये जो रिब्स हैं बाहर, इन रिब्स ने इसको कवर किया। थोरेक्स क्या चीज है, हियर इज द थोरेक्स, थोरेक्स इन सब चीजों को, ये रिब्स, ये लंग्स, ये सारा जो सिस्टम आपको दिख रहा है इंक्लूडिंग द डायफ्राम, इस सारे एरिया को हम थोरेक्स बोलते हैं। Here it is thorax, ribs, ribs के अंदर lungs, ये जो सारा एरिया है this is known as this all thing is known as thorax. thorax के अंदर lungs होते हैं दो, lungs के अंदर आगे हमारे पास क्या आता है, bronchioles आते हैं, bronchioles के बाद alveoli आती हैं, और alveoli के अंदर हमारा gases exchange हो रहा होता है। once again हम आते हैं ribs के ऊपर, हमारे पास chest cavity में there are 12 pairs of ribs, you know 1 2 3 4 and 12, so 12 pairs of ribs हैं जिसमें से आपको कुछ नजर आ रही हैं, स्टर्नम कहते हैं, you can even touch this thing, ये बिल्कुल दरमियान में बोन है, इस स्टर्नम, इस स्टर्नम के साथ कुछ रिब्स की बोन्स अटैच हैं, कुछ आपको नीचे नजर आएंगी बोन्स डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली ऊपर दूसरी बोन्स रिब्स के साथ अटैच होगी, इन्हें हम कहते हैं फ्री रिब्स, these are free ribs actually। और अगर आप इसकी बैकवर्ड देखो, ये रिब्स अगर जा रही हैं पीछे की तरफ तो किससे अटैच हो रही हैं, बैकबोन के साथ, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअली थोरेक्स, ये रिब्स, इसके अंदर लंग्स और ये सारा इस सबको हम थोरेक्स बोल रहे होते हैं। अच्छा, इन रिब्स के दरमियान में जो आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं, these are intercostal spaces, और इन इंटरकोस्टल स्पेसेस में होते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, दिस इज वेरी सिंपल। जो अगर आप अपनी रिब्स को बाहर से पकड़ते हैं तो यू कैन मूव योर हैंड वेरी इजीली, मतलब आपने एक जगह पे हैंड को स्टिक करके अगर आप मूव करेंगे तो नीचे स्किन मूव करती है, वो एक्चुअली जो रिब्स के बाहर, यहाँ पे रिब्स के बाहर जो मसल्स हैं, these are external intercostal muscles, जो बाहर की तरफ है, और जो इस तरह रिब्स की अंदर वाली साइड पे जो मसल्स होंगे, these are internal, those are internal intercostal muscles। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अंदर वाले इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो रिब्स के दरमियान में स्पेसेस हैं, these are intercostal spaces, जो सारी रिब्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। फ्रंट पे स्टर्नम और बैक साइड पे सारी रिब्स किससे जॉइन कर रही हैं, बैकबोन के साथ जाकर। हाउ मेनी रिब्स आर देयर, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ऑलराइट। और इसके बाद आती है हमारे पास वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा हमारे जो लंग्स हैं, यू नो जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं, साइज बड़ा हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स डिफ्लेट करते हैं। तो ये जो सारी मूवमेंट है लंग्स की, इसमें एक फ्रिक्शन होती है। अब आप यहाँ पे देखो बहुत गौर से, आपको प्लूरल फ्लूइड नजर आ रहा है ब्राउन ब्राउन,
दिस प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, इस प्लूरल फ्लूइड से इंटरनल वाली लेयर देखो तो एक लंग्स के साथ अटैच्ड है। हमारे पास प्लूरल कैविटी है, ये सारी ये जो आपको ब्राउन नजर आ रहा है विच इज अ फ्लूइड, एक्चुअली ये प्लूरल कैविटी है। कैविटी इज एक्चुअली यू कैन से स्पेस। तो इस प्लूरल कैविटी के अंदर दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक इंटरनल जो लंग्स के साथ अटैच है, एक एक्सटर्नल जो रिब्स के साथ अटैच्ड है, और उसके दरमियान में देयर इज अ प्लूरल फ्लूइड। इट इज अ लुब्रिकेंट जो जब हम सांस लेते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, लंग्स का साइज बड़ा होता है, तब वो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होती ताकि दर्द ना प्रोड्यूस हो। सो हियर इज द प्लूरल कैविटी। उस प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड, और उस फ्लूइड का काम क्या है, ताकि लुब्रिकेशन करे और लंग्स की एक्सपेंशन और डिफ्लेशन के अंदर हेल्प की जाए। और लास्ट थिंग है हमारे पास आज के लेक्चर की, विच इज डायाफ्राम। ये डायाफ्राम लंग्स के बिल्कुल लास्ट में है। यूजुअली क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम ये नीचे चला जाता है। यहाँ से ये डायाफ्राम जब हम इन्फ्लेट करेंगे, एयर को इनहेलेशन करेंगे, तो ये डायाफ्राम नीचे की तरफ चला जाएगा, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये ऊपर की तरफ पुश करता है। इस टेक्निक इट एक्चुअली हेल्प्स द लंग्स टू डिफ्लेट प्रॉपरली। लंग्स को हेल्प करता है ताकि लंग्स में से जो एयर है वो प्रॉपरली निकल सके। तो डायफ्राम इज एक्चुअली मस्कुलर शीथ। दूसरा ये कि डायफ्राम हेल्प करता है जो रेस्पिरेटरी कैविटी है लंग को नीचे वाले सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से या दूसरे सिस्टम के साथ डायरेक्ट अटैच होने नहीं देता, सेपरेशन रखता है इसके अंदर। इट इज अ सेपरेशन वॉल, सेपरेटिंग वॉल, जो कि लंग्स को और दूसरे सिस्टम्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रही होती है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। लास्ट पे एक छोटी सी वीडियो देखते हैं that how much we learned about this thing. Many of us have hundreds of things on our minds at any moment, often struggling to keep track of everything we need to do. But fortunately, there's one important thing we don't have to worry about remembering: breathing. When you breathe, you transport oxygen to the body's cells to keep them working and clear your system of the carbon dioxide that this work generates. Breathing, in other words, keeps the body alive. So how do we accomplish this crucial and complex task without even thinking about it? The answer lies in our body's respiratory system. Like any machinery, it consists of specialized components and requires a trigger to start functioning. Here, the components are the structures and tissues making up the lungs, as well as the various other respiratory organs connected to them. And to get this machine moving, we need the autonomic nervous system, our brain's unconscious control center for the vital functions. As the body prepares to take in oxygen-rich air, this system sends a signal to the muscles around your lungs, flattening the diaphragm and contracting the intercostal muscles between your ribs to create more space for the lungs to expand. Air then whooshes into your nose and mouth, through your trachea, and into the bronchi that split at the trachea's base, with one entering each lung. Like tree branches, these small tubes divide into thousands of tinier passages, called bronchioles. It's tempting to think of the lungs as huge balloons, but instead of being hollow, they're actually spongy inside, with the bronchioles running throughout the parenchyma tissue. At the end of each bronchiole is a little air sac called an alveolus, wrapped in capillaries full of red blood cells containing special proteins called hemoglobin. The air you've breathed in fills these sacs, causing the lungs to inflate. Here is where the vital exchange occurs. At this point, the capillaries are packed with carbon dioxide, and the air sacs are full of oxygen. But due to the basic process of diffusion, the molecules of each gas want to move to a place where there is a lower concentration of their kind. So as oxygen crosses over to the capillaries, the hemoglobin grabs it up, while the carbon dioxide is unloaded into the lungs. The oxygen-rich hemoglobin is then transported throughout the body via the bloodstream. But what do our lungs do with all that carbon dioxide? Exhale it, of course. The autonomic nervous system kicks in again, causing the diaphragm to ball up and the intercostal muscles to relax, making the chest cavity smaller and forcing the lungs to compress. The carbon dioxide-rich air is expelled, and the cycle begins again. So that's how these spongy organs keep our bodies efficiently supplied with air. Lungs inhale and And this was our first lecture. Yes, it was lengthy. You can ask questions freely
when you want to, or you can ask questions after this lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.